Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all the parents and teachers. How are you all? Today we will start our unit 7 of class 1 New Oxford Modern English. And first of all, we will know the SLOs. The SLOs mean student learning outcomes. Those outcomes which we have to assess at the end of the chapter means the things which the students will be able to learn at the end of the chapter or the end of the lesson. The title of the story is Clever Fox and Greedy Wolf. Clever Fox and Greedy Wolf. SLOs of this chapter are reading. First of all, we will tell the correct method of reading with correct pronunciation to the students, and we will focus on the pronunciation and the expression during the reading. Second SLO is comprehension. Third SLO is vocabulary. In this chapter vocabulary, we will know about antonyms. Antonyms are the opposites. Okay, words opposites are also known as antonyms. Grammar. In grammar, we will learn about past tense. This whole story is in past tense, means the tense which have been passed, yani guzra hua zamana. Okay, the next is composition, means the creative writing, and in composition we will do sentence making, and at the end of the chapter we will assess the students for all these SLOs. So let's start. First of all, we will do the words to know, which are also known as words meanings, and we will do the English to English meanings also, and I have written the English to Urdu meanings also for your understanding. And we will tell the students to learn the spellings of these words, and these will be their dictation words also, and these will be the words and meanings also. And the students have to do these words meanings on their notebooks. This is the abbreviation of notebook. Okay, NB means notebook. Words to know are clever. The first word is clever. Clever means intelligent and able to learn things quickly. In Urdu we will say it समझदार. Clever means समझदार. ठीक है, यहाँ पे we are not using the word cunning, which means चालाक. Cunning का मतलब होता है चालाक या यानी शातिर इंसान. ठीक है, but clever is being used as a positive quality here, and it means intelligent and wise, and a person who is able to learn the things very quickly, very sharp. This person is called sharp or clever. Okay, समझदार. Greedy. The second word is greedy. Greedy means wanting a lot more food or money more than a fair share. Means कि एक बंदा जो है वो उसको जितना उसका हिस्सा है वो उससे भी ज़्यादा मांग रहा है. ठीक है, और नाजायज़ तरीके से मांग रहा है, गलत तरीके से, तो उसको हम कहते हैं ग्रीडी, मीन्स लालची. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ हंग्री. हंग्री मीन्स भूखा. एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन द स्टमक caused by a need for food. When we want food, we feel hungry, and we have a certain kind of cramping in our stomach, and that is called the hunger, and the person who is feeling that hunger is called hungry. Roared. The next word is roared. Roared means made a long, loud, deep sound. Mostly the animals make these kind of sounds, and when they make a sound very loud, तो उसको हम कहते हैं धारणा. Okay, roared, it is with an E and D, which makes it in the past tense. Okay, so this word is being used in the past tense here. It means धाड़ा. Next word is rolling pin. इसको हम उर्दू में कहते हैं बेलन, which is used to make bread, which is used to make roti, which is used to make chapati, whichever word you use. A long cylinder that is used for making dough flat and smooth. Okay. Whisper. The next word is whisper. To speak very quietly. Whisper means बहुत आहिस्ता से बोलना, means सरगोशी करना या बहुत आहिस्ता से किसी के कान में कुछ कहना. Okay, so these were the words to know, words meanings. You have to ask the children to do these words meanings in their notebooks, and you have to ask the students to learn the spellings of these words and then write the meanings of these words also. Okay, and learn the meanings also. Now we are going to start the reading. A clever fox
met a greedy wolf in the forest. A clever fox, ये मैंने साथ साथ इन सब वर्ड्स के जो मुझे लग रहा है कि मैं बच्चों को जो उनसे वो डिफ़िकल्ट लगेंगे उनके मैंने मीनिंग साथ साथ लिखे हुए हैं. अ क्लेवर फॉक्स मेट अ ग्रीडी वुल्फ. अ क्लेवर फॉक्स एक समझदार लूमड़ मिला. अ ग्रीडी वुल्फ एक लालची भेड़िए से. इन द फॉरेस्ट जंगल में. आई एम हंग्री मैं भूखा हूँ. ग्राउल्ड द वुल्फ भेड़िया गुर्राया. ग्राउल्ड का क्या मतलब है? गुर्राया, यानी कि बहुत गुस्से से बहुत ऊंची आवाज से वो बोला. आई एम गोइंग टू ईट यू अप मैं तुम्हें खाने लगा हूँ या मैं तुम्हें खा जाऊंगा. ठीक है. द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड लूमड़ डर गया. हेयर द फॉक्स इज अ मेल. ओके, सो हम उसको लूमड़ बोलेंगे. ठीक है. जो लूमड़ी होती है उसको हम जो है वो फीमेल उसमें बोलते हैं. द फॉक्स वॉज फ्राइटेंड लूमड़ डर गया या वो खौफजदा हो गया. डोंट ईट मी मिस्टर वुल्फ मुझे मत खाएं जनाब भेड़िया. प्लीज डोंट बराए मेहरबानी मुझे मत खाएं. क्राइड द फॉक्स लूमड़ रोया या वो चीखा. वाई नॉट क्यों नहीं. रोड द वुल्फ भेड़िया धाड़ा. ओके. आई एम हंग्री मुझे भूख लगी है. द फॉक्स हैड एन आइडिया लूमड़ को एक ख्याल आया या उसने एक प्लान बनाया. ओके. मुर्तज़ा अस्करी दिस इज फॉर क्लास 1. दिस इज क्लास 1 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 7. कम विद मी मेरे साथ आए. सेड द फॉक्स लूमड़ ने कहा. आई विल फाइंड यू सम फूड मैं आपको कोई खाना थोड़ा सा खाना ढूंढ देता हूँ. द फॉक्स टुक द वुल्फ टू एन ओल्ड हाउस. लूमड़ भेड़िए को एक पुराने घर में ले गया. दे लुक्ड थ्रू द किचन विंडो उन्होंने किचन की या बावर्ची खाने की खिड़की में से देखा. हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट दे आर लुकिंग थ्रू द स्मॉल विंडो ऑफ द किचन. आहा सेड द वुल्फ. आहा भेड़िए ने कहा. लुक एट द फूड खाने को देखो. इन द किचन बावर्ची खाने में अ वुमन वॉज पुटिंग केक्स ऑन अ शेल्फ. एक औरत शेल्फ पर केक रख रही थी. ये देखें यू कैन सी दैट दिस वुमन इज पुटिंग अ केक ऑन द शेल्फ. शी वेंट आउट ऑफ द किचन एंड शट द डोर. शी वेंट आउट वो बाहर गई ऑफ द किचन बावर्ची खाने से. वो बावर्ची खाने से बाहर गई एंड शट द डोर और दरवाज़ा बंद कर गई. वी कांट गेट इन हम अंदर नहीं जा सकते. सेड द वुल्फ भेड़िए ने कहा. बी क्वाइट चुप रहो खामोश रहो. विस्पर्ड द फॉक्स लूमड़ ने सरगोशी की. द किचन विंडो वॉज वेरी स्मॉल. किचन की या बावर्ची खाने की खिड़की बहुत छोटी थी. द फॉक्स ओपनड इट लूमड़ ने इसे खोला. हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट द फॉक्स इज ट्राइंग टू क्लाइंब अप थ्रू दिस किचन विंडो. ओके. ही क्लाइंब थ्रू द विंडो वो खिड़की पर चढ़ गया. कम इन साइड अंदर आ जाओ. सेड द फॉक्स टू द वुल्फ लूमड़ ने भेड़िए को कहा. द वुल्फ क्लाइंब्ड इन साइड भेड़िया भी अंदर कूद गया. क्लाइंब्ड मीन्स कूद गया. द फॉक्स एंड द वुल्फ स्टार्टेड टू ईट द केक्स. लूमड़ और भेड़िए ने केक खाने शुरू कर दिए. द फॉक्स एट 1 केक लूमड़ ने एक केक खाया. देन द फॉक्स टुक 3 केक्स फिर लूमड़ ने 3 केक उठाए एंड पुट देम आउटसाइड द विंडो और उन्हें खिड़की के बाहर रख दिया. द वुल्फ वॉज ग्रीडी भेड़िया लालची था. ही एट 1 केक उसने एक केक खाया. चॉम्प 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 दिस इज द sound which he is making while eating the cake. Okay. Then he ate another cake and another. फिर उसने एक और केक खाया. एक और एक और मीन्स कि वो खाता जा रहा है केक. The wolf ate 8 cakes. भेड़िए ने 8 केक खाए but still did not stop. लेकिन अभी भी रुका नहीं. Suddenly अचानक the woman came into the kitchen. औरत बावर्ची खाने में आ गई. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Shouted the woman. औरत चिल्लाई. Have you eaten my cakes? क्या तुमने मेरे केक खा लिए हैं? The woman picked up a rolling pin. औरत ने एक बेलन उठाया. The fox jumped through the small window. लूमड़ छोटी खिड़की से बाहर कूद गया.
He picked up the 3 cakes and ran away. उसने अपने 3 केक उठाए और भाग गया. The greedy wolf was too fat. लालची भेड़िया बहुत मोटा था. He could not get through the window. वो खिड़की से बाहर नहीं निकल सका. Oh dear, oh dear. What did the greedy wolf pick up? ओ प्यारे लालची भेड़िए ने क्या उठाया या उसको क्या मिला या उसने क्या हासिल किया. बेस्ड ऑन अ फोक टेल मीन्स दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड स्टोरी. ओके, फोक टेल इज अ स्टोरी विच इज टोल्ड बाय सम एंशिएंट पीपल और सम ओल्ड पीपल. ओके, एक ऐसी स्टोरी जो कि पहले भी हमारे बड़े बूढ़े जो हैं वो हमें सुनाते हैं. Here you can see in this picture that they are eating the cakes. Okay, and here you can see the fox is running away with his cakes which he put outside the window, and you can see that the wolf is too fat because he has eaten too many cakes, and those cakes have made him too fat. उसने इतने सारे केक्स खा लिए थे, इस वजह से वो अब बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था और अब वो खिड़की से बाहर नहीं निकल पाया. तो फिर औरत आ गई अंदर. दैट वुमन केम इनसाइड द किचन एंड शी पिक्ड अप द रोलिंग पिन एंड बीट हिम विद दैट रोलिंग पिन. यानी कि उसको वुल्फ को कुछ नहीं मिला. वुल्फ वॉजंट एबल टू गेट द केक्स, इंस्टेड ही गॉट अ बीट. उसको एक मार पड़ी. और जो फॉक्स था ही वॉज क्लेवर. उसने अपने आप को भी खाने से बचा लिया, अपने आप को भी वुल्फ की फूड बनने से बचा लिया और उसने केक भी खा लिया और उसने अपना केक का हिस्सा लेके वो भाग भी गया. ठीक है, उसको मार भी नहीं पड़ी. तो इसमें यानी कि जो फॉक्स था वो समझदार था और जो वुल्फ था ही वॉज ग्रीडी और उसको अपनी ग्रीड की वजह से जो है वो मार खानी पड़ी. और इट मीन्स द लेसन ऑफ द स्टोरी इज, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ग्रीड इज अ कर्स. सो पेरेंट्स एंड टीचर्स, दिस वॉज द रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस चैप्टर. एंड आप लोगों ने बच्चों से इसी तरह ये रीडिंग करवानी है, इसी तरह उनसे ट्रांसलेशन सुननी है और जो उनकी मिस्टेक्स होंगी उनको आपने साथ साथ पॉइंट आउट करना है. इन द नेक्स्ट लेसन आई विल टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. So till the next lecture, take care. Allah Hafiz.